Hello dear students, so in this video we'll be doing derivation of Huygens theory. So we have two derivations here, law of refraction that we have to derive, that is Snell's law, and then we'll derive the law of reflection, which is nothing but angle I is equal to angle R, right? These two derivations are in scope. Okay, so without wasting time, let's just get on with this. Okay, so the geometry of this diagram is important, so you have to practice at least 2-3 times so that you become comfortable drawing this diagram. Okay, and you are supposed to draw this diagram from pencil and scale, etc. Do not use pen in exam. So we have a interfacing boundary AB, right, between two mediums. So for scenario we have taken, this is a rare medium and this is a dense medium. So we know that light travels faster in a rare medium compared to a denser medium. Okay, so ये अपना वेव फ्रंट है, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो ऐसे गिर रहा है, हमको मालूम है वेव फ्रंट propagation of light is rather perpendicular to the wave front, so light ऐसे travel कर रही है, right, और wave front हमारा इसके perpendicular, so this is the wave front, right? Now as it falls on this interface boundary, so there are 2 points, right, one point this and one point this, which are on the same wave front. They are a point of interest. So beyond this point, what will happen? This point, just focus on this point. This point will enter into a medium 2 from medium 1, while this point is still on medium 1. So that is the key thing. So we have to assume the speed of light in this medium 1 is v1, and here it is v2. Here it is v2. Okay, now what till the time this point reaches, point S reaches point Q, that means on the interface boundary, so the distance traveled will be SQ, and that will be equal to v1 into tau, where tau we have taken is a time interval. Time interval for the point S to reach point Q. So speed is v1, so distance will be v1 into tau. Now what will happen to this point in the same time interval? In the same time interval tau, now this guy is into another medium. Another medium means the speed is different. Speed is v2, so this point will rather travel a distance v2 into tau, because tau is same for both, right? It is a time interval, right? So v2 into tau. Now we know that as a fact that v2 is less than v1, so this length, when you draw this, okay, this is the important thing, when you're drawing this, make sure you're drawing this length a little longer and this length a little shorter. Okay, so what you're going to do is take your compass here, take it as a center, right, and take a distance which is less than v1 tau, sufficiently less than v1 tau, so that you can feel the difference, right, of bending. So take v1 tau, the distance, and draw an arc, and from that, on that arc, draw a tangent from point Q, right, because this point M is on the wavefront. At the same time, this point Q is also on the wavefront, right? So you have to draw a tangent from point Q to point M. So this angle will be 90, because you know the tangent and radius are perpendicular, so this will be 90 degree. Okay, so this is the geometry part. Now this angle is angle of incidence, because this is the angle at which wavefront is falling on this interfacing boundary, and this is the angle of refraction I, because this is the refracted wavefront. So let me just also name it here. This is our refracted wavefront. This is very important that you nomenclate this properly in your derivation. This is the incident wavefront, this is the refracted wavefront, and the angle made by the refracted wavefront from the interfacing boundary is angle of refraction. Okay, so this is angle I, this is angle R. Now once you have done, so this is the main part of the derivation. If you have done this, उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा. आपको क्या करना है, एक बार ट्राइंगल SPQ में साइन I को लिखना है. साइन I लिखा हो तो क्या आ जाएगा, v1 टाउ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो v1 टाउ, देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल ये है,
सो पी क्यू इज आर हाइपोटेन्यूज, सो V1 टाउ अपॉन पी क्यू। ऐसे ही साइन आर लिखोगे आप तो क्या आ जाएगा, साइन आर लिखोगे तो V2 टाउ अपॉन पी क्यू, राइट। यहाँ पे भी ये एंगल 90 बिकॉज आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये एंगल 90 है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये V2 टाउ अपॉन पी क्यू। यहाँ से आप साइन आई बाई साइन आर करोगे तो V1 बाई V2 आ जाएगा, टाउ विल बी गेटिंग कैंसल्ड। ओके, नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 1 वुड बी speed of light in air or vacuum upon speed of light in that medium. So this is the refractive index of medium 1. So V1 can be written as C by mu1. Similarly, V2 can be written as C by mu2. So अब sin I by sin R हमारे पास क्या आ गया था, V1 by V2. V1 की जगह हमने लिख दिया C by mu1, C by mu2. So sin I by sin R will be mu2 by mu1. So यहाँ से क्या आ जाएगा, mu1 into sin I is equal to mu2 into sin R. Guys, this is what Snell's law, right? We know. Now there is another part to this, the impact on wavelength. So once in the exam in CBSE board they have asked this very fairly recently, 24-25, they asked to derive this, right? So generally this part is omitted. It is there in NCERT, but generally this part is omitted, what I've seen in the general teaching, but I've covered this here. Impact on wavelength. We know that ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि वेवलेंथ कैसा हो जाता है, अगर हमारी किसी एयर और वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा है तो दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है, वो लैम्डा बाई म्यू हो जाती है, राइट। ये हम लोग यूज करते हैं ये फॉर्मूला, तो इसका भी डेरिवेशन है, आप देख लो। अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं पॉइंट एम एंड क्यू, देखो पॉइंट एम और क्यू को जरा फोकस करो, कैन वी से दे आर ऑन द सेम वेव फ्रंट, राइट। अगर ये सेम वेव फ्रंट पे दे मस्ट बी ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, अगर ये सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं डियर, तो ये मान के चलो अगर ये V1 टाउ डिस्टेंस जो है हम इसको लैम्डा 1 बोल दें एक मोमेंट के लिए, अगर इसको हम मतलब कि ये अगर लैम्डा 1 मतलब पूरी एक वेवलेंथ है, मान लो एक प्रूफ करने के लिए हमने एक सिंपल केस लिया है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस लैम्डा 1 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से आया, मतलब एक वेवलेंथ आगे आ गए आप, लैम्डा 1 आगे आ गए आप, राइट। सो दैट इज अ पाथ दैट इट हैज ट्रैवल्ड। अब आप खुद सोचो कि ये दोनों पॉइंट स्टार्टिंग में सेम वेव फ्रंट में थे, तब भी ये सेम फेज में होंगे और अभी भी ये सेम फेज में होंगे। इसका मतलब अगर P और S स्टार्टिंग में सेम फेज में थे, M और Q ये भी सेम फेज में होने चाहिए बिकॉज ये सेम वेवफ्रंट के। तो अगर इसने लैम्डा 1 की जंप मारी है तो इसको करस्पॉन्डिंग सेम वेवलेंथ यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। तो इसको लैम्डा 1 है, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, लैम्डा 2 के बराबर ट्रैवल करना चाहिए, तभी तो ये दोनों सेम फेज में आ पाएंगे। अगर ये मान लो ये लैम्डा 2 से कुछ ज्यादा या कम हुआ तो फिर इनका फेज बिगड़ जाएगा ना, दे विल नॉट बी इन द सेम फेज। इसका मतलब अगर V2 टाउ मतलब अगर V1 टाउ लैम्डा 1 है तो इसका मतलब V2 टाउ क्या होना चाहिए, लैम्डा 2 होना चाहिए। बस यही चीज हम यूज करेंगे डियर यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट M एंड Q आर द सेम वेवफ्रंट, हेंस दीज टू पॉइंट शुड बी इन सेम फेज। अगर सेम फेज में है तो अगर ये V1 टाउ इज लैम्डा 1, सो V2 टाउ क्या होना चाहिए, लैम्डा 2, ताकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग मीडियम में वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या जाएगा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। और फिर वही काम करेंगे जो हमने किया था, V1 को लिख लेंगे, यहाँ से अगर आप लिखोगे V1 को C बाय mu1 C बाय mu2 तो वापस ये क्या आ जाएगा, mu2 बाय mu1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन वेवलेंथ, या फिर इसको उल्टा करके लिख सकते हैं लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू mu1 बाय mu2। अब जो फॉर्मूला आप जिस फॉर्म में जानते हो ये है, उसमें क्या है कि हम इंसिडेंट मीडियम को एयर या वैक्यूम लेते हैं तो वहां पे म्यू की वैल्यू आ जाती है, म्यू1 की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर म्यू1 की वैल्यू डियर 1 हो जाएगी तो खुद देख लो लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 बाय म्यू, लैम्डा 1 बाय म्यू, वेयर म्यू इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। सो दिस इज द वेल नोन फॉर्मूला दैट यू नो, ओके। सो एक चीज और, कई बार एग्जाम में हम लोग जो लर्न करते हैं वो होता है कि हम रेयर से डेंस में जा रहे हैं, विच इज टिपिकली द केस बिकॉज हम लोग का मेन मीडियम जो है एयर वैक्यूम रहता है और वो दूसरा मीडियम इसमें हम लाइट ट्रैवल करती है। बट एक बार एग्जाम में ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि यही सिनेरियो बनाओ, ड्रॉ करो, किसके लिए, डेंस टू रेयर के लिए। तो ये प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। डेंस टू रेयर के लिए कैसे बनाना, सब कुछ सेम रहेगा, ये इंटरफेसिंग बाउंड्री रहेगी, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट रहेगा। बस यहाँ पे यह ध्यान रखना कि ये एंगल अगर आई है तो ये जो एंगल थोड़ा बड़ा आना चाहिए आर, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये V1 टाउ लिया था आपने ऐसे, तो इससे बड़ा एक आर्क लोगे, V1 टाउ से सफिशिएंटली बड़ा आर्क लोगे और यहाँ पे सेंटर लग के ऐसे मारोगे और यहाँ से टेंजेंट खींचोगे, तो यहाँ पे आर जो होगा वो ये बड़ा एंगल हो जाएगा, आई छोटा एंगल है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं,
कि हमें लगता है कि एंगल तो हमने लिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारे लिए एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे था, तो ये तो कुछ और ही एंगल है, ये तो मीडियम के साथ एंगल ले लिया है हमने, और ये एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं आया है गाइस। आप देखो तो जो ये नॉर्मल लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, और जो ये लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर के बीच में होता है, तो ये एंगल भी आई होगा, बिल्कुल ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हो, ये एंगल आई है तो ये कितना है 90 माइनस आई, अब ये पूरा फिर से 90 है तो ये वापस आई हो गया, ठीक है। ऐसे आप ये भी जज कर सकते हो कि अगर ये एंगल आर है तो बेसिकली ये एंगल भी बिल्कुल सेम तरीके से आप समझ सकते हो कि ये एंगल भी आर होगा। ये आर है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस आर, और ये पूरा फिर से 90 है तो वापस आर हो गया। तो एक्चुअली एंगल वही हो गया साइन आई बाई साइन आर, राइट। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि एंगल्स नहीं सेम है, एंगल ये वही है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, या फिर नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का। ओके, होप दिस हेल्प्स, डू ए प्रैक्टिस especially about the diagrams. Proof is not difficult, diagram drawing is important here. Thank you very much.